Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, shalom. Hallelujah. Thank you, Yahushua HaMashiach. We praise your name, Yahushua HaMashiach. We praise your name, Yahushua HaMashiach. Praise your holy name, Yahushua HaMashiach. We praise your holy name. Yahushua HaMashiach, we invite your presence in this place. May your presence descend in this place, Yahushua. May your presence come, your presence come, your presence come. Yahushua HaMashiach, we pray for your presence. Yahushua, a King, a Lord, a Savior, a Master. May your presence invade this place. May your holy presence come. May your holy presence come upon all who are logging in and all who are supposed to log in. May your presence come, your presence come, your presence come, your presence come. Lord, I pray for your holy, sacred, blessed, glorious presence to come. Hallelujah, hallelujah, your presence. King of glory, your blessed presence, your glorious presence to come. Hallelujah, hallelujah. We seek your refreshing anointing, Lord. We seek your refreshing anointing. We pray for your mantle to fall upon us. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सब अपना मुंह खोल के प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, प्रेज यू, ब्लेस यू, प्रेज यू। हालेलुया। ब्लेस यू, प्रेज यू, ब्लेस यू, प्रेज यू। Jesus of Nazareth, we bless you, we praise you. Jesus of Nazareth, we bless you, we praise you. Jesus of Nazareth, we bless you, we praise you. Jesus of Nazareth, we bless you, praise you, bless you, praise you. Hallelujah, hallelujah. We lift up your name, we lift up your name. Your name is name above every name, Lord Jesus. Hallelujah. We lift up your name, we lift up your name, we lift up your name, we lift up your name. Lord, we ask you to charge your angels now. May they this place. Lord, we pray for the angelic presence. Every satanic activity that may go against your word today, Father, let that activity be bound in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Father, let your angelic host be unleashed. Your angelic host be unleashed now, Father. Now, in the name of Jesus, now your angelic host be unleashed. Now your angels be unleashed. Angels be unleashed. Angels be unleashed in this place. तेरे स्वर्गदूतों को खोलिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे लोग ऑनलाइन आए प्रभु, औरों को भी लेकर आइए प्रभु। आज तेरे अद्भुत वचन को खोलने से पहले हम सबको एकत्रित कीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। Bring us together. Holy Spirit, bring us together. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We praise you. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। वी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु, हम तेरे हाथ में प्रभु तेरे वचन के अध्ययन को सौंपते हैं। यीशु मसीह, तेरा लहू लगाते हैं अपने ऊपर, तेरे लहू के साए को लेते हैं। यीशु मसीह, एक एक जन पे मैं तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ, तेरे जलाली नाम के अभिषेक को खोलता हूँ। खुदावंद, ये तेरा वचन अद्भुत है, अलौकिक है और ये जीवित है। ये मुर्दा बुक नहीं है यीशु मसीह, ये जिंदा किताब है। हालेलुया। और प्रभु, ये तेरा इंटीग्रेटेड मैसेज है जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होली स्पिरिट ने हमें दिया है। प्रभु, इसे खोलिए। हालेलुया। मैं एक एक जन को, एक एक भाई बहन, एक एक परिवार जो इनके घराने हैं, उन सबको तेरे कील सीधे हाथों में देता हूँ, तेरा लहू छिड़कता हूँ खुदावन। हालेलुया। यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। I hope you guys are doing well and the Lord is taking care of you and you are being a blessing to one another. And I really hope that you are looking for somebody that you can make difference. दूसरों की, गरीबों की, दुखियों की, जिन्हें भोजन नहीं मिला, जो संकट में, आप उनकी सहायता कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। आज एक बड़ा ही
गंभीर सब्जेक्ट जो मेरे दिल में प्रभु ने डाला, जिसे मैंने फेसबुक पे डाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वर्स के अंदर, पहला तिमोथियस, मैं सबसे पहले आपको ग्रीक टेक्स्ट में से उसकी फाउंडेशन बताना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा कहता है कि इन अंत के दिनों में, पौलुस लिखता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एक्सप्रेसली सेज, वेरी विद क्लैरिटी द होली स्पिरिट सेज, कि अंत के दिनों में क्या होगा। क्या होगा? वचन में क्या लिखा है? मैं वचन पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको वचन कोट करता जाऊंगा और आप अपनी बाइबल से देखते जाना। प्रभु कहते हैं, द स्पिरिट क्लियरली सेट इन द फेथ लिविंग स्पिरिट्स, कुछ हट जाएंगे और किनके पीछे जाने लगेंगे? वचन में लिखा है डिसीविंग स्पिरिट्स, भरमाने वाली आत्माओं के पीछे जाएंगे। एंड थिंग्स टॉट बाय डीमंस, और किसके पीछे जाएंगे? डीमंस की डॉक्ट्रिन के पीछे जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो भरमाने वाली आत्मा है, ग्रीक टेक्स्ट में पौलुस क्या लिखता है? प्लेनोस। प्लेनोस ग्रीक वर्ड है G4108। ये भरमाने वाली आत्मा कैसी है? ये आत्मा ऐसी है, इसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मतलब है स्पिरिट दैट लुक्स जस्ट लाइक होली स्पिरिट, डिसीविंग इम्पोस्टर, पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देने वाली भरमाने वाली आत्मा। प्लेनोस न्यूमा ग्रीक वर्ड है, प्लेनोस G4108। प्लेनोस न्यूमा, मसीह की आत्मा की तरह भरमाने वाली आत्मा। और दूसरा शब्द प्रेरित पौलुस यहां पे लिखता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। वो शब्द है डिडाक्लिसिया। डिडाक्लिसिया का मतलब डॉक्ट्रिन, डिडाक्लिसिया डायमोनियन। ये बहुत डीप बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमन इज डिडाक्लिसिया डायमोनियन एंड प्लेनोस न्यूमा। दो बातें, प्लेनोस न्यूमा भरमाने वाली आत्मा जो बिल्कुल पवित्र आत्मा की तरह दिखाई देती है, और बदरूहों की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की तालीम, डिडाक्लिसिया डियमोनिया, डॉक्ट्रिन तालीम, डायमोनिया डीमन, जिसके लिए डिडाक्लिसिया के लिए ग्रीक लेक्सिकन में वर्ड है G1319 और डायमोनियन के लिए वर्ड है G1140। आप चेक कर सकते हैं इसे लेक्सिकन में। आपको मालूम ये डीमंस के लिए जो वर्ड क्या है, इसका मीनिंग, इसका मतलब एक तो है डीमन बदरूहें, दूसरा वर्ड है गॉड्स। समझ रहे हैं आप? जब नफलीमों को यहोवा ने मारा जल प्रलय में, वो सोल थे, उनमें स्पिरिट नहीं, वो फना हो गए। साल तक पानी रहा पृथ्वी के ऊपर, एंड इट टुक देम मे बी मोर देन 5 years टू डाई। सब मर गए, उनकी जो सोल निकली अंदर से वो डीमन बन गई, और डीमन बनी, वही जो सोल्स डीमन बनी, वही मिस्रियों के देवता थे, वही अमोनियों के देवता है, वही हित्तियों के, वही कनानियों के, वही बैबलोनियन के, वही सुमेरियन के, वही ग्रीक गॉड्स, वही इस संसार के अंदर जो पैनथियॉन है, ये वही लोग हैं जो जेनेसिस चैप्टर 6 में आपको मिलते हैं। और वो आत्माएं भरमाने वाली, समझ रहे हैं आप, वो भी वही हैं। और वो जो डायमोनियन जो वर्ड है ग्रीक में, उसका मतलब भी वही है, भरमाने वाली आत्माएं। एंड दे आर ब्रिंगिंग डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। हालेलुया। डिडाक्लिसिया डायमोनियन कब लेके आ रही हैं? अब, राइट नाउ, इन अंत के दिनों में। और आपको मालूम कितनी जबरदस्त बात प्रेरित पौलुस लिखता है? दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का 3 वचन अगर आप पढ़ेंगे, ये 1 और 2 है, अगर 3 वचन पढ़ेंगे, वहां प्रेरित पौलुस कहता है कि लोग क्या करेंगे? कानों की खुजली के कारण नए नए गुरु धारणा करेंगे। दे विल हैव न्यू टीचर्स। किसके लिए? कानों की खुजली के लिए। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है यहाँ पे किनीथो, ग्रीक वर्ड किनीथो,
जिसका असली मतलब पता क्या है, जिसने कहा कानों को टिकल करने वाले, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ऐसे लोग जो अपने कानों में सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, ताकि पासवान उन्हें बोले गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट ईयर, 2020 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर ऑफ ब्लेसिंग, सुपर डुपर ब्लेसिंग विल कम, तेरे को बड़ा बंगला मिलेगा, तेरे को बड़ी गाड़ी मिलने जा रही है, तू विदेश में जाने जा रहा है, तेरे संग ये होने जा रहा है, ये बड़ी बरकत। वो सोचते हैं प्रोफेसी यही जो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग है उसकी डिमेंशन यही है, ये सोचते हैं वो लोग। दिस इज व्हाट प्रोफेटिक डिमेंशन इज। तो ये जो लोग हैं, क्नीथो जो ग्रीक वर्ड है, कानों की खुजली, उसका मतलब वो लोग दे ओनली वांट टू हियर प्लेजेंट थिंग्स, दे ओनली वांट you to talk to them good words. God is going to bless you. Praise the Lord. Hallelujah. बरकतें आने जा रही हैं, आशीषें आने। 2019 में झूठे नबी ये नबूवतें कर रहे थे, 2020 में ये होगा, 2020 में ये होगा। खुदा के रूह ने मुझे बता दिया था 2017 में, that season is begun. It is going to become worse from bad. Nothing is going to get better. सुन लीजिए परमेश्वर का सच्चा वचन। वचन में लिखा है ये लोग अच्छी अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं, सच्चा कलाम सुनना नहीं चाहते। और अगले वचन में लिखा है दे विल गिव ईयर टू फेबल्स, लिखा है इंग्लिश में, लेकिन असली वर्ड है मूथोस, जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है मिथोलॉजीज। दंत कथाएं सुनेंगे, पास्टर लोग प्रीच करेंगे साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी के पूरे कोर्सेज लोगों को सिखाएंगे कि आप अपने आप को शीशे में देखें, अपने आप से कहें यू आर विक्टोरियस, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गोइंग टू कॉन्कर, मनी इज कमिंग टू यू, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम गोइंग टू अचीव माई ड्रीम्स, एवरीथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। जैसे वो फिल्म में था ना, जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। साइकोलॉजी, मेटाफिजिकल साइंस। और चर्चें होंगी सीकर सेंसिटिव, ऐसी चर्च होंगी जिसके अंदर प्लानिंग ये होगी कि चर्च नंबर में कैसे बढ़े, कैसे हमें गिनती इतनी बढ़ानी है। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे लोगों को चोट लगे। पॉप को, पॉप कल्चर को, रॉक म्यूजिक को, हर तरह की म्यूजिक को चर्च में लाना है, और तरह की इनोवेशन, क्रिएटिविटी लोगों को देनी है। हमने एक्सपैंड करना है, हमने आइसोलेट नहीं होना, हमें संसार में घुसना है, बिल्कुल आइसोलेट होके नहीं रहना, हमें दुनिया को जीतना है। ऐसे एजेंडाज होंगे उनके। लिखा है कानों की खुजली, मतलब वो अच्छी बातें ही सुनना चाहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। कलाम में क्या लिखा है? वचन में लिखा है सारा कलाम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है। ग्रीक वर्ड है थियस नस्टस, मतलब परमेश्वर की फूक है कलाम। थियोस नस्टस ग्रीक भाषा में। गॉड ब्लू एंड रोट, गॉड ब्लू हिज ब्रेथ एंड रोट द वर्ल्ड। ये परमेश्वर की श्वास है, ये कलाम जीवित है, ये टाइम एंड स्पेस से परे है, यहां का नहीं है। और ये किस लिए दिया गया है? सिखाने के लिए, ताड़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन हर भले काम के लिए सिद्ध हो, इसलिए दिया गया। ये लॉलीपॉप या कैंडीज बांटने के लिए नहीं दिया गया, मेक यू फील गुड करने के लिए नहीं दिया गया। आपको मालूम मसीह का मैसेज कन्फ्रंट करता है। कलाम में लिखा यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है। अगर कलाम सच्चा होगा ठोकर लगेगी, समझ रहे हैं आप? सच्चे कलाम से ठोकर लगेगी, आपको कन्फ्रंट करेगा कलाम। यह सच्चे कलाम की खासियत होगी। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं और इसकी डिटेल में जाऊंगा धीरे धीरे। डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस पे कई सेशन हम करेंगे। मैं आपको बताना, आपको मालूम सबसे बड़ी डिसेप्शन, फर्स्ट डिसेप्शन गार्डन में आई, आप सभी जानते हैं। किसको भरमाया शैतान ने? किसको? हवा को। उसका नाम है खवा। खवा मीन्स द प्रोजेनिटर ऑफ लाइफ। खवा इज लाइफ इन हिब्रू। खवा जीवन देने वाली माता। उसको 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में कैसे भरमाया? सेटन पुट अ क्वेश्चन बिफोर ईव। प्रश्न डाला उसके आगे। क्या था प्रश्न? डिड गॉड रियली से? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? शैतान क्या करता है? सुनिए ध्यान से। शैतान आपको हमेशा अल्टरनेटिव देगा।
शैतान सच्चाई के साथ एक पैरेलल ट्रूथ लेके आएगा आपके आगे, एक और ऑप्शन देगा, इसको कंसिडर करें जरा, डिड गॉड रियली से? फिर क्या कहता है? नो नो नो, यू वोंट डाई, तुम मरोगे नहीं। आपको मालूम, एकदम उसने मार्कर को रिमूव कर दिया। यहोवा ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे सचमुच मरोगे। उसने किसके ऊपर आके प्रश्न उठाया? यहोवा के जीवित कलाम के ऊपर। और फिर वो आगे क्या गया? यू विल नॉट डाई, यू विल बी लाइक गॉड। ही रिमूव द मार्कर। अब जब परमेश्वर के क्वेश्चन, परमेश्वर के वचन के ऊपर सवालिया चिन्ह शैतान ने लगाया, तो उसने देखा कि ईव अब कैसे फील करती है। शैतान ने उसे एक अलग ढंग से अप्रोच किया कि अब वो कैसे फील करती। डिड गॉड रियली से? उसको एक और ऑप्शन दी, और उसने क्या किया? उसने उसी दरख्त को दूसरी नजर से देखा, जैसे पहले नहीं देखा था। उसने अलग ढंग से जब देखा तो उसे लगा इट इज प्लेजेंट टू ईट, ये खाने के लिए अच्छा है, ये बुद्धि देने वाला है, इसके अंदर कई गुण हैं। जब शैतान उसे उस रेल्म से निकाल के बाहर ले गया, परमेश्वर के वचन के ऊपर सवालिया चिन्ह लगा के, और उसे एक दूसरा अल्टरनेटिव दिया, एक पैरेलल ट्रूथ ला के दिया, परमेश्वर के कलाम को इक्लिप्स करके, उसके ऊपर शैडो डाल के, तो वो फल, वो ट्री को अलग दृष्टि से देखती है। वो उस जगह से मूव कर गई। कौन सी जगह? जहां पे परमेश्वर के कलाम के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती है। उस सेकंड्स के अंदर मूव कर गई। शैतान ने उसे सिड्यूस किया, एक पल के अंदर उसने उसके आगे प्रश्न रखा, वो वहां से मूव हो गई। चीज पहली जगनी शुरू हो गई, इमोशंस, भावनाएं। आपको मालूम सबसे डिसेप्टिव क्या चीज है? फीलिंग। गॉड कॉल्स अस बिलीवर्स बिकॉज वी बिलीव इवन व्हेन वी डोंट फील। गॉड डजंट कॉल अस फीलर्स। आपको मालूम आज बहुत से लोग परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे मेजर करते हैं? फीलिंग से। ओ आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओ आई जस्ट फेल्ट द अनॉइंटिंग। आपको अपने इमोशन को पार्किंग लॉट में खड़ा कर देना है। शैतान उसको कैसे डाइवर्ट करके ले गया, और परमेश्वर के कलाम की ओबीडियंस के रेल्म से वो मूव कर गई। आपको सोल को खोलना नहीं है, अपनी सोल को अपनी स्पिरिट के नीचे छिपा के रखना है, क्योंकि आपकी सोल ने नया जन्म नहीं पाया अभी। आपको मालूम आपका नया जन्म कहां हुआ है? जो कोई यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई हैं आपकी आत्मा में। अगर आप पढ़ें याकूब की पत्री पहले अध्याय का 21 वचन, याकूब कहता है सारी गंदगी मंदगी निकालो अपने अंदर से, और परमेश्वर के कलाम को हलीमी से लो। कैसे लेना है परमेश्वर के जीवित कलाम को? हलीमी दीनता से। जो तुम्हारे अंदर बोया गया, इट्स ऑलरेडी इनग्राफ्टेड, जो तुम्हारी जान को बचा सकता है। आपकी सोल को छुटकारे की, उद्धार की जरूरत है, और आपकी सोल का उद्धार डेली होता है जान का। तो आपने अपनी जान को खोलना नहीं उस रेल्म में, नहीं तो आपका फ्लैश, आपका शरीर, आपकी आत्मा के ऊपर प्रभुता करने लगेगा, राज्य करने लगेगा। मैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3-4 वचन में फिर जाएंगे हम, जहां पे प्रेरित पौलुस बताता है कि कैसे शैतान ने हवा को डिसीव कर लिया। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस पे जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं एनसाइक्लोपीडिया डॉक्ट्रिन के विषय में क्या कहती है। द डॉक्ट्रिन क्या है? द कॉडिफिकेशन ऑफ बिलीफ और अ बॉडी ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन taught in principles or position as the body of teaching in a branch of knowledge or belief or a system। कि जो आपको सिखाया गया, जो शिक्षा है, जो आज्ञाएं हैं, जो विधियां हैं, और जो आपकी पोजीशन है, जगह है, उनको आपकी आस्था के, आपके विश्वास के एक अच्छे ढंग में इकट्ठा किया हुआ एक पूरा मसौदा, उसे डॉक्ट्रिन कहा जाता है।
तालीम कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ डीमन क्या है आपको मालूम है? आपको बताना चाहता हूं। एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपसे किसी ने टाइम पूछा, आपने घड़ी देखी, आपकी घड़ी में बज रहे थे 11:30, आप 10 बज गए, तो ये होती है मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप किसी को इंटेंशनली धोखा देने के लिए गलत जानकारी देते हैं, उसे कहा जाता है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन शैतानी शिक्षा। तो मैं आज जो विषय लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं, लेकिन अभी मैं केवल नए नियम की झूठी शिक्षाओं को लूंगा, फिर पुराने नियम की झूठी शिक्षाओं, उनके पीछे कौन कौन से धर्मों के पैंथियन थे, कौन कौन से देवी देवता थे, कौन कौन से कल्चरल टबूस थे, कौन कौन सी सोशोलॉजिकल चीजें जुड़ी थी, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं नए नियम में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली जो झूठी शिक्षा थी नए नियम में, वो था जूइश लीगलिज्म। जूइश लीगलिज्म आपको मैं बताना चाहता हूं, एक व्यवस्था जो यहोवा ने दी मूसा को, वो पवित्र है, उस व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा करते हैं। लेकिन जब इस्राएली लोग बाबुल में गुलामी में चले गए, बाबुल की गुलामी के दौरान यहूदी लोगों ने उन्हें शैतानी आत्माओं ने भरमाया और उनके रब्बियों और उस्तादों ने तलमुद लिखा, टैलमड बोलते हैं उसको, मिशना लिखा और बहुत सी और पुस्तकें लिखी जो परमेश्वर के कलाम से मेल नहीं खाती। उन्होंने परमेश्वर के कलाम की इंटरप्रिटेशन की उनके बड़े बड़े रब्बियों ने, और उस किताब को उन्हें लिखा जिसे हम टैलमड बोलते हैं। तलमूद के अंदर बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। तलमूद में उन्होंने यहां तक लिखा है, यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है बाद में, जो 2nd-3rd सेंचुरी में उन्होंने टैलमड लिखा की एक्सटेंशन की, कि यीशु मसीह की माता मरियम का रिलेशन था किसी रोमन सोल्जर के साथ, उसका नाम भी लिखा उन्होंने। वो इतनी शैतानी शिक्षा है। यीशु मसीह जो टैलमड की तालीम थी जो बैबलोन में उन्होंने लिखा था, उसको कंडेम करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, हाय तुम्हारे ऊपर, हाय तुम्हारे ऊपर सदूकियो, तुम बाहर से व्हाइट वॉश टूम्स हो पर तुम्हारे अंदर गंदगी है। फिर यीशु मसीह कहते हैं, ये व्यर्थ में मेरा नाम लेते हैं, मुंह से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं पर इनका दिल मेरे से दूर है। उनकी कुरीतियों को, उनकी गलत शिक्षाओं को यीशु मसीह कंडेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहीं भी परमेश्वर की व्यवस्था को कंडेम नहीं किया। यीशु मसीह बल्कि कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मूसा की व्यवस्था को मानते तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मूसा मेरी बातें करता है। तो वचन के अंदर एक बड़ी गहरी शिक्षा है जिसे आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह विरोध करता है उस शैतानी शिक्षा का जो टैलमड के रूप में है। अब गलतियों की कलीसिया का अगर आप अध्ययन करेंगे, गलतियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसे यहूदी भाई विश्वासी जो अपने आप को कहते थे, लेकिन वो टैलमड की शैतानी शिक्षा को मानते थे। वो आके यहूदियों को, जो यहूदियों में से मसीह में आए, उन लोगों को, और जो अन्य जाति के मसीह में आए उन लोगों को भरमा रहे थे। आप पढ़िए पहला अध्याय गलतियों की पत्री 6 अध्याय से 9 वचन, वहां पे प्रेरित पौलुस कहता है, तुम में से कुछ आके मसीह के अनुग्रह को परवर्ट कर रहे हो, परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ रहे हो। और फिर गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 1 से 5 वचन को पढ़िएगा बाद में आप, वहां पे वो प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा केवल यीशु मसीह के सलीबी काम के द्वारा है। तुम इसके अंदर खतना ऐड कर रहे हो और व्यवस्था के उन कामों को ऐड कर रहे हो जो व्यवस्था के नहीं बल्कि टैलमड के हैं। और फिर गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 1 से 12 वचन में वो कहता है कि तुम अनुग्रह से गिर जाओगे जो मसीह के कारण हमें मिला है। प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखता इसलिए है क्योंकि जो जूइश लीगलिज्म था, जूडेआइजर थे, झूठे शिक्षक थे, वो आके इस कलीसिया को भरमा रहे थे। और आपको मालूम प्रेरित पौलुस इतना गुस्से में इनके विषय में, फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के, अगर फिलिपियों की पत्री 3 का 2 वचन अगर आप पढ़ेंगे, फिलिपियों 3 के 2 में प्रेरित पौलुस यहां तक कि इन्हें ईवल डूअर्स और डॉग्स भी बोलता है, जो टैलमड की सच्ची व्यवस्था की बात नहीं कर रहे यहोवा की, लेकिन टैलमड की बात करते हैं और भरमाते हैं। हालेलुया। और पहला तिमोथियस पहले अध्याय के 3 से 7 वचन को अगर आप पढ़ लीजिए तो प्रेरित पौलुस
तिमोथियस को हिदायत देता है कि इन लोगों से कह कि ये स्ट्रेंज शिक्षाएं ना दें, ये जो स्ट्रेंज शैतानी तलीमें हैं लोगों को ना दें। और तीतस की पत्री पढ़िए, पहला अध्याय तीतस की पत्री 10 अध्याय से 16 वचन। प्रेरित पौलुस सख्त शब्दों में कहता है ऐसी झूठी शिक्षा देने वालों का मुंह बंद किया जाए। और इब्रानियों 13 के 9 में भी प्रेरित पौलुस ऐसा, मैं मानता हूं इब्रानियों प्रेरित पौलुस ने लिखी है, ऐसा आदेश देता है। ये फॉल्स झूठी शिक्षा जो है लीगलिज्म की, प्रेरित पौलुस बताता है ये बंद होनी चाहिए। ये थी एक पहली झूठी शिक्षा। जुडाइजर्स आके जूइश लीगलिज्म में लोगों को घसीट रहे थे नए नियम के अंदर। पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय, मैं ये वचन पढ़ ही देता हूं, बीच बीच में कुछ वचन मैं पढ़ देता हूं, हालेलुया, सभी हम नहीं पढ़ पाएंगे। पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसके 20-21 वचन को निकाल लीजिए। पहला तिमोथियस 6 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन, हालेलुया। क्या कहता है प्रेरित पौलुस यहां पे? प्रेरित पौलुस कहता है, तिमोथी, गार्ड व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू योर केयर, टर्न अवे फ्रॉम गॉडली चैटर एंड अपोजिंग आइडियाज दैट इज फॉल्सली कॉल्ड नॉलेज, विच सम हैव प्रोफेस्ड एंड इन सो डूइंग हैव डिपार्टेड फ्रॉम फेथ। ये जो फॉल्स टीचिंग है इसे कहा जाता है द हेरेसी ऑफ GNOSTICISM, नॉस्टिसिज्म। ये नॉस्टिसिज्म की तालीम क्या है? ये झूठे ज्ञान की शिक्षा है। ये मसीह का ज्ञान नहीं है, ये झूठा ज्ञान है। पहली कलीसिया में ये शिक्षा बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट थी। कुछ ऐसे लोग थे जो ये क्लेम करते थे कि हमारे पास सुपर स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमारे परमेश्वर के साथ कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं, ऐसे अनुभव हैं, इस एक ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे पास जो बाइबल में नहीं है। और वो लोगों को बताते थे कि जिनके पास ये सुपीरियर नॉलेज है वो बाकी के लोगों से बेटर हैं, जिसे कहा जाता है कि हमारी एक्स्ट्रा एनलाइटनमेंट हुई है, हम तुम्हारे से एक्स्ट्रा एनलाइटनड हैं। जहां भी कहीं ऐसी शिक्षा दी जाती किसी चर्च में, किसी संस्थान में, जो अपने आप को एक्सक्लूसिव बताता है कि हम अलग हैं, बाकी बेकार हैं, हम अलग हैं, जो हमारे पास है वो एक्सक्लूसिव है, जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला, हम बिल्कुल अलग हैं, ऐसी एक्सक्लूसिवनेस की जो शिक्षा होती है वो इस हेरेसी की ओर इशारा करती है। ये नॉस्टिसिज्म जो है ये बल्कि उससे ज़्यादा डीप है। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, मैं चाहता हूँ कुछ वचन मैं आपके संग पढ़ दूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री निकाल लीजिए और उसका हम पढ़ेंगे 8 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय जल्दी से निकालिए। मैं बीच बीच में कुछ वचन पढ़ूंगा, बाकी आपको मैं कोट करूंगा ताकि आप अपने घर में पढ़िए इन वचनों को। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में प्रेरित पौलुस एक बड़ी जबरदस्त बात करता है। ये कौन सी बात है? इस कलीसिया के अंदर ऐसी सुपर डुपर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट वाले, नॉस्टिसिज्म वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा जो रूहानी जीवन, हमारे जो रूहानी तजर्बे वो बिल्कुल अलग हैं, एक सुपर एनलाइटनमेंट हमें मिली है। और ये एक ऐसी लिबर्टी का प्रचार करते हैं कि हम आज़ाद हैं, तुम लोग तो बहुत तंग दायरे में बंधे हुए हो, तुम्हारी शिक्षा बड़ी संकीर्ण है, तुम्हें ये आज़ादी नहीं मिली, हमें आज़ादी मिली। तो ये क्या करते थे लोग? ये कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों की पत्री में बहुत से मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें पॉल एड्रेस करता है। ये मूर्तियों के आगे चढ़ा प्रसाद खाते हैं, और ऐसे फेस्टिवल थे जो ग्रीक लोगों के थे जहाँ पे जानवर की बलि दी जाती थी, लहू देवताओं के आगे चढ़ाया जाता था, कई बार कच्चा मांस लोग खाते थे और लहू भी पीते थे, और वहाँ पे नंगा डांस भी करते थे आदमी और औरत, और सेक्सुअल ऑर्जीज भी होती थी वहाँ पे। इन सभाओं में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे कि हमें संसार को जीतना है, संसार के बीच में जाके संसार को जीतना है, और इस बहाने तहत सारे काम किया करते थे और ये कहते थे कि हम सुपर स्पिरिचुअल हैं, हम अलग हैं। प्रेरित पौलुस बताता है इस नॉस्टिसिज्म की कि ये शैतानी है, ये तुम्हें पाप, बदकारी और हर तरह के अधर्म के काम करने का लाइसेंस दे रही है। नॉस्टिसिज्म, पुराने नियम में बहुत सी पत्रियां इस चीज की ओर। नॉस्टिसिज्म असल में है क्या?
ये ग्रीक फिलॉसफी की देन है। अरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, उनकी जो शिक्षा इन लोगों के अंदर थी ऑलरेडी। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे कौन कौन सी शिक्षा थी, कहाँ कहाँ प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम पुस्तक में उसका खंडन करता है और पत्रियों के अंदर उसका खंडन करता है। सो ये नॉस्टिसिज्म की झूठी शिक्षा के विरोध में प्रेरित पौलुस लिखता है। और अगर आप पढ़ लीजिएगा 2 वचन और, पहला तिमोथियस 2 अध्याय का 14 से 16 पढ़ लीजिएगा, और कुलिस्सियों 2 अध्याय। मैं चाहता हूँ ये वचन हम पढ़ लें जल्दी जल्दी। पहला तिमोथियस 2 अध्याय जल्दी से निकालिए। 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 2। मैं सिर्फ ये वचन पढ़ दूंगा आपके लिए। पहला वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रेरित पौलुस कहता है, एंड एडम वॉज नॉट द वन डिसीव्ड बट इट वॉज वुमन हु वॉज डिसीव्ड एंड बिकेम अ सिनर, बट वुमन विल बी सेव्ड थ्रू चाइल्ड बेयरिंग एंड इफ दे कंटिन्यू इन फेथ, लव एंड होलीनेस। यहाँ पे उसके लिए वर्ड जो यूज कर रहा है प्रेरित पौलुस वो है नॉस्टिसिज्म। फिर प्रेरित पौलुस एक बात करता है, कुलिस्सियों की पत्री पढ़िए, कुलिस्सियों की पत्री निकालिए जल्दी से। कुलिस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 2 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 2 वचन से। यहाँ प्रेरित पौलुस लिखता है, माई गोल इज दैट दे मे बी एनकरेज्ड इन हार्ट एंड यूनाइटेड इन लव, सो दैट दे मे हैव फुल रिचनेस ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर दैट दे मे नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड, नेमली क्राइस्ट, इन होम आर हिडन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज। कुलिस्सियों की पत्री में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। कुलिस्सियों की पत्री में फिलॉसफी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोलोशियंस जो लोग हैं उनके ऊपर अरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। और इस ज़माने में पॉल से पहले 2 बड़े फिलोसफर हुए, इपिक्यूरियन एंड स्टोइक, जिनकी फिलॉसफी के विषय में आपको बताऊंगा प्रेरित पौलुस कहाँ कहता है वो झूठी डॉक्ट्रिन है। तो ये जो ज्ञान, बुद्धि, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एनलाइटनमेंट, प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के अंदर सारी बुद्धि और मसीह के अंदर सारा ज्ञान छिपा हुआ है। अब कोई एक्स्ट्रा ज्ञान, कोई एक्स्ट्रा रेवलेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह के अंदर ऑलरेडी छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू ऑल देयर? हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I don't know how it got disconnected. कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? Was it disconnected or were you online? सबको सुनाई दे रहा था उस समय या कट गया था? प्लीज राइट अ मैसेज एंड टेल मी। डिस्कनेक्ट हो गया था या चल ही रहा था? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया स्क्रीन पे। हालेलुया। Was it still on or did it get disconnected? बताइए प्लीज। हालेलुया। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। हालेलुया। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। काफ़ी लोग बीच में से छूट गए हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी आ जाइए वापस। लेट्स कंटिन्यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू। यू कैन ऑल सी मी। हालेलुया, हालेलुया। Come on, please show up everybody. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the third false doctrine that Paul encounters, and even John the apostle, he talks about in detail in his epistles. That doctrine is called एसेटिसिज्म। एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? उचाट हो जाना दुनिया से, संसार से, संसार की चीज़ों से विरक्त हो जाना। ये शिक्षा भी थी उचाटवाद की,
जैसे हमारे ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में है, हमारे देश में, हमारे देश के कई धर्मों में संसार को त्याग देना, संसार का मोह त्याग देना, संसार की बातों से विरक्त हो जाना, ये शिक्षा की झलक आपको मिलती है कलाम में, जिसके विरोध में परमेश्वर के दास लिखते थे। एस्केटिज्म, एस्केटिज्म की शिक्षा क्या, इस शिक्षा की आधारभूत शिक्षा क्या है? इसकी आधारभूत शिक्षा ये है कि जो हमारा शरीर है ये इनहेरेंटली करप्ट है, हमारी बॉडी करप्ट है और हमारे शरीर की इननेट प्रोपेंसिटी है पाप करना। हमारे शरीर के अंदर पाप की एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसे बाइबल मानती है, लेकिन ये ईस्टर्न मिस्टिसिज्म जिसकी परछाई पड़ी और ये शिक्षा, झूठी शिक्षा चर्च में आई, जिसका जो शिक्षा ये थी कि इस शरीर को हमने मारना है। यीशु मसीह की शिक्षा है सेल्फ डिनायल की, अपने आप का इनकार करना। यीशु मसीह की सेल्फ डिनायल की, अपने आप के इनकार करने की शिक्षा को कुछ लोग एक्सट्रीम पे ले गए और अपनी बॉडी को वो पनिश करते थे, सेल्फ अब्यूज करते थे, मारते थे। मैं कई ऐसे तपस्वियों से मिला हूं बड़े साल पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, जो आग के बीच में रहते हैं गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में पानी में समाधि लेते हैं। और एक ऐसे साधु को मिला जो कील के बिस्तर पे सोता है, क्योंकि उनकी धारणा ये है कि शरीर को मारा जाए, कुचला जाए, शरीर के अंदर पाप है, बदकारी है। तो ये जो शिक्षा थी ये भी कलीसिया के अंदर आई, अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देने की, सेल्फ डिनायल, अपने आप को इनकार करने की एक्सट्रीम सीमा पे जाना, अपनी बॉडी को अब्यूज करना और मारना और लताड़ना। कुलिस्सियों की पत्री इसी के 2 अध्याय के 18 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब आप ओरिजिनल ग्रीक में जाके अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि असली शब्द क्या है। यहाँ पे कुलिस्सियों 2 की 18 में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डू नॉट लेट एनीवन हु डिलाइट्स इन फॉल्स ह्यूमिलिटी and worship of the angels disqualify you. Such a person also goes into detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. They have lost connection with the head, from whom the whole body supported and held together by its ligaments and sinews grows as God causes it to grow. The church in Colossae also had this problem. Extreme ऐसे जहां पे लोग अपनी बॉडी को मारते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, सेल्फ डिनायल की चरम सीमा पे जाते हैं अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, जिससे वो सोचते हैं कि इसको कष्ट देने से हम पाप से मुक्त हो रहे हैं। तो प्रेरित पौलुस इसे कहता है कि कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं वो हेड से डिस्कनेक्ट है। हेड कौन है हमारा? यीशु मसीह है। यीशु मसीह से वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एस्केटिज्म की ये जो शैतानी शिक्षा है। फिर एक और शिक्षा है नए नियम में, जिसे हम थियोलॉजी की भाषा में कहेंगे एंटीनोमियनिज्म। अब ये एंटीनोमियनिज्म क्या है? मैंने आपको बताया प्रेरित पौलुस जब जाता है, प्रेरितों के काम पुस्तक में लिखा है, प्रेरित पौलुस आपको मालूम जब प्रचार करने लगा उस समय प्रभु यीशु इतना चुनौती भरा था, क्योंकि उस समय कोई भी प्रभु को नहीं जानता था, कोई भी यीशु मसीह को जानता नहीं था। उन लोगों को, नए लोगों को जाके प्रभु के विषय में बताना और कलीसियाएं स्थापित करना। और मालूम उस जमाने में ग्रीक की फिलॉसफी, यूनान का जो सभ्यता थी जिसने पूरे विश्व पर राज किया, और उनकी जो फिलॉसफी थी, अरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, दिग्गज जो स्कॉलरली लोग थे, उनकी दार्शनिकता लोगों के माइंड पे राज कर रही थी। तो प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है वो इपिक्यूरियन फिलोसफर के बीच में जाके वाद विवाद करता है, स्टोइक फिलोसफर के बीच में जाके डिबेट करता है और वहां उन्हें मसीह को प्रेजेंट करता है। वो एक लर्नड व्यक्ति था, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति था। वो जूडाइज्म में बहुत बड़ा स्कॉलर था और उसने दुनिया की संस्कृतियों का अध्ययन किया था, उसने दुनिया की फिलॉसफीज का अध्ययन किया था, उसे दुनिया के धर्मों का अध्ययन था। वो हिस्ट्री को जानने वाला व्यक्ति था, वो विज्ञान को समझने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहता है, इतना पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति होने के बावजूद भी वो क्या कहता है? वो कहता है वो सब चीजें मैं कूड़ा करकट समझता हूं। वो घमंड नहीं करता था, हालेलुया। वो कहता उन सब चीज़ों को कूड़ा करकट समझता हूँ। और क्या कहता है? कहता मैं लुभावने शब्द लेके,
और इंसान के ज्ञान की चिकनी चुपड़ी बातें लेके तुम्हारे पास नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो मसीह के क्रूस की सामर्थ निष्फल ठहरे। मैं कमजोरी में आया तुम्हारे पास ताकि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास इतना बड़ा हेरिटेज है, उसके बाद सबको शून्य करना और मसीह को ऊंचा करना। तो यहां पे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यीशु मसीह से अलग हो गए वो लोग जो संसार की फिलॉसफी, संसार की दार्शनिकता, संसार के ज्ञान को बीच में ब्लेंड कर रहे हैं। आज भी कई लोग कर रहे हैं। परमेश्वर के कलाम के अंदर कई चीजें मिक्स कर रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं अपने हिसाब से। परमेश्वर का कलाम आप तोड़ता है, परमेश्वर का कलाम आपको और मुझे सीधा करता है। हम परमेश्वर के कलाम को बदल नहीं सकते, परमेश्वर का कलाम हमें बदलता है। हालेलुया। तो ये जो एंटी नोइमनिज्म की तलीम है, इसके विषय में सुन लीजिए आप। जो स्टोइक और इपिक्यूरियन फिलोसोफर हैं, जो इस डॉक्ट्रिन को के प्रोपोनेंट थे, वो ये कहते थे कि बॉडी और सोल दोनों आपस में सेपरेट हैं। बॉडी और सोल दोनों आपस में सेपरेट हैं। और उनकी शिक्षा ये थी कि आपकी बॉडी जो है वो अलग एंटिटी है और आपकी स्पिरिट, आपकी सोल अलग है। स्पिरिट में वो बिलीव नहीं करते थे, बॉडी एंड सोल में करते थे। और वो ये सिखाते थे कि आप अपनी बॉडी में दुनिया के प्लेजर को एंजॉय कर सकते हो, काम वासना, संसार के गंदे कामों का आनंद ले सकते हो, शरीर में जो चाहो शरीर में कर सकते हो, लेकिन अपनी सोल को प्योर रखो। परमेश्वर का सिर्फ सोल के साथ कनेक्शन है। तो आप अपनी देह में ये सारे काम कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सोल को प्योर रखो। वो सोल को और बॉडी को दोनों को अलग करते थे। एक वचन पढ़िए, तिमोथियस की पत्री निकालिए, दूसरा तिमोथियस उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए यहाँ पे अपनी बाइबल में। दूसरा तिमोथियस 3 का 13, वाइल ईवल डूअर्स एंड इम्पोस्टर्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड, बट एज फॉर यू कंटिन्यू इन व्हाट यू हैव लर्नड एंड हैव बिकम कन्विंस्ड ऑफ, बिकॉज यू नो दोज फ्रॉम whom यू हैव लर्नड। क्या कहता है प्रेरित पौलुस यहाँ पे? मैं 9 तक कौन सा वचन हमने पढ़ा है? दूसरा तिमोथियस, अब एक और पढ़ेंगे हम। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय के 2 वचन से भी पढ़ लीजिए। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय के 2 वचन से पढ़िए। यहां लिखा है, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप से प्यार करेंगे, कि जो भी दुनिया के भोग विलास, दुनिया मनी, पैसे से प्यार करेंगे। बोस्टफुल, घमंडी, प्राउड, एब्यूजिव, डिसोबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, अनग्रेटफुल, अनहोली, विदाउट लव, अनफॉरगिविंग, स्लैंडरस, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, ब्रूटल, नॉट लवर्स ऑफ गुड, ट्रेचरस, रैश, कंसीटेड, लवर्स ऑफ प्लेजर रादर देन द लवर्स ऑफ गॉड। वो प्लेजर के साथ, भोग विलास और संसार के क्षण भर के आनंद के साथ प्यार करने वाले और प्रभु के साथ प्यार करने वाले नहीं होंगे। सेल्फ के साथ प्यार करेंगे, जिसे मैंने आपको बताया था, नार्सिसिज्म की स्पिरिट है ये। सेल्फ से प्यार करना, आई, माई, मी, मैं, ये नार्सिसिज्म है। और इसके विषय में भी कलाम बताता है। और एक पढ़ें दूसरा तिमोथियस 3 की 13 आयत, जो मैंने पढ़ी दी है, फिर पढ़ देता हूँ। वाइल ईवल डूअर्स एंड इम्पोस्टर विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। ये इन्हीं के विषय में प्रेरित पौलुस कह रहा है। वो डिसीव होंगे और दूसरों को भी डिसीव करेंगे। और एक वचन और पढ़ें, निकालिए पतरस की पत्री निकालिए, दूसरा पतरस, और उसका आप जल्दी से निकालिए 2 अध्याय। दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन तक मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा पतरस 2 अध्याय। बट देयर वर ऑल्सो फॉल्स प्रॉफिट्स अमंग द पीपल, जस्ट एज देयर विल बी फॉल्स टीचर्स अमंग यू। झूठे नबी थे और झूठे सिखाने वाले होंगे, ये कलाम कहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ना हो, वो होंगे। दे विल सीक्रेटली इंट्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज। वो क्या लेके आएंगे?
सीक्रेटली लेके आएंगे तबाह करने वाली तालीम में। इवन डिनाइंग द सॉवरेन लॉर्ड हु बॉट देम, ब्रिंगिंग स्विफ्ट डिस्ट्रक्शन ऑन देमसेल्व्स। वो प्रभु का इनकार करेंगे और अपने ऊपर क्या लेके आएंगे? तबाही लेके आएंगे, डिस्ट्रक्शन। दूसरा पतरस 2 अध्याय के 1 से 3 वचन को पढ़ा हमने। अब मैं 13 और 14 वचन भी पढ़ता हूं आपके लिए। दे विल बी पेड बैक विद हार्म फॉर हार्म they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasure while they feast with you. ये वो लोग हैं जो भोग विलास कहते हैं कि शरीर में भोग विलास करो दबा के, कोई बात नहीं, अपनी जान पवित्र रखो, सोल पवित्र रखो। ये शैतानी टीचिंग है एंटीनोमिनिज्म की, जिसके विषय में प्रभु के दास जिसका खंडन कर रहे थे, इस तालीम का। और एक वचन और पढ़िए, इसी का 18-19 पढ़ लीजिए। दूसरे पतरस की पत्री का 18 और 19 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फॉर दे माउथ एम्प्टी बोस्टफुल वर्ड्स एंड बाय अपीलिंग टू द लस्टफुल डिजायर्स ऑफ द फ्लैश दे एंटाइस पीपल हु आर जस्ट एस्केपिंग फ्रॉम दोज हु लिव इन एरर। दे प्रॉमिस them freedom while they themselves are slaves of depravity. For such people are slaves to whatever has mastered them. दूसरों को बोलेंगे कि तुम आज़ाद हो जाओगे ऐसे करने से, लेकिन वो खुद पाप के गुलाम हैं। ये टीचिंग है एंटीनोमिनिज्म की, जिसके विषय में प्रभु का वचन बता रहा। और आप पढ़ें, यूहन्ना इसे रिब्यूक करता है। प्रभु का दास यूहन्ना अपनी पत्री में डांट लगाता है ऐसे झूठे नबियों की, झूठे शिक्षकों की, जो ये शिक्षा पहली सदी में शिक्षा आ चुकी थी एंटीनोमिनिज्म की, झूठी तालीम। पढ़िए आप जल्दी से, निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए, एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और इसका 4 वचन से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 4 वचन से। एवरीवन हु सिन्स ब्रेक्स द लॉ, इन फैक्ट सिन इज लॉलेसनेस। जो भी पाप करता है वो व्यवस्था को तोड़ता है, और पाप क्या है? व्यवस्था को तोड़ना पाप है। ये वही व्यवस्था है जो परमेश्वर ने मूसा को दी है। कुछ लोग सोचते हैं ना टूट गई, खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई, ये अनंत व्यवस्था है। हालेलुया। और क्या लिखा? बट यू नो that he appeared so that he might take away our sin. तो टेक अवे इसका आगे भी पढ़ दीजिए, डियर 7वें वचन से पढ़िए, नहीं 5 से पढ़ता हूँ। बट यू नो दैट ही अपीयर्ड सो दैट ही माइट टेक अवे आवर सिन एंड इन हिम देयर इज नो सिन, नो वन हु लिव्स इन हिम कीप्स ऑन सिनिंग। जो मसीह में है कभी हो नहीं सकता भी वो पाप करता ही रहे। ये उसी शिक्षा को खंडन कर रहा है यूहन्ना, जो शिक्षा कहती थी कि जान शुद्ध रखो, शरीर में भोग विलास कर सकते हो। नो वन हु कंटिन्यूज टू सिन हैज ईदर सीन हिम और नोन हिम। जो पाप में लगा हुआ है, पाप का गुलाम है और मसीह का नाम भी लेता है, उसने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं। डियर चिल्ड्रन, डू नॉट लेट एनी वन लीड यू एस्ट्रे। तुम्हें कोई धोखा ना दे। द वन हु डज वट इज राइट इज राइचियस जस्ट एज ही इज राइचियस। द वन हु डजंट does what is sinful is of the devil. जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? Because devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of Man was appeared so that he might destroy the works of the devil. No one, 9 वचन पढ़े, no one who is born of God will continue in sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. जिसके अंदर परमेश्वर के कलाम का बीज है वो कभी पाप में लगा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है। ये जो शिक्षा थी एंटीनोमिनिज्म की, कि शरीर में पाप कर सकते हो लेकिन जान को शुद्ध रखो, ये शैतानी तालीम है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, अगर तुम ज्योति में चलो, सुनिए गौर से, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा, अगर तुम ज्योति में चलो तब उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करता है। आप लगाते हो ना लहू अपने ऊपर, यीशु मसीह तेरे लहू की जय, मैं लहू लगाता हूँ, लेकिन अगर आप ज्योति में नहीं चल रहे तो लहू काम नहीं कर रहा आपके जीवन में। जितना मर्जी लगा लो लहू, घर की चौखट पे लगा लो, मत्थे पे लगा लो, दिल पे लगा लो, जीवन पवित्र होगा। ज्योति में चल रहे होंगे। ज्योति का मतलब मैंने कल आपको बताया, परमेश्वर का कलाम ज्योति है, उसके अंदर आपका जीवन गुंदा होगा तो लहू काम करेगा।
यीशु मसीह का लहू यीशु मसीह के कलाम का आदर करता है। तीनों यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का कलाम मिलके काम करते हैं। यीशु मसीह का कलाम कभी काम नहीं करेगा जहां पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है। पवित्र आत्मा कभी नहीं उतरेगा जहां लहू नहीं है। लहू कभी काम नहीं करेगा जहां वचन नहीं है। तीनों आपस में मिलके काम करते हैं। ये शैतानी तलीमें लोगों को गुमराह कर रही थी पहली सदी में, इसलिए चेलों को पत्रियां लिखनी पड़ी। यहूदा की पत्री मैं चाहता हूं आप निकालें जल्दी से मेरे साथ। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले मिलेगी आपको, पीछे की तरफ से जाके आप जल्दी निकाल सकते हो। यहूदा की पत्री, मैं ये वचन आपको पढ़वाने चाह रहा हूं भाई और बहनों, कोई प्रोफेशनल टाइप प्रीचिंग नहीं कर रहा मैं बड़े आराम से आपको सहजता से ये बताने चाह रहा हूं कि पढ़ें आप और जानें कि प्रभु के कलाम की सच्चाई क्या है, और झूठे शिक्षकों से, झूठे नबियों से, झूठी तलीमों से, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमन से आप बच सकें। यहूदा की पत्री उसका 4था वचन सबसे पहले पढ़ता हूं मैं। फॉर सर्टन इंडिविजुअल हुज कॉन्डेमनेशन वॉज रिटन about long ago have secretly slipped among you. They are ungodly people who pervert the grace of our Lord Jesus into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign Lord. कि कुछ लोग तुम्हारे से चुपके से आ घुसे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अधर्मी लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को तोड़ मरोड़ रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को हरामकारी, लुच्चपुना, जनाकारी का लाइसेंस बना के तुम्हें दे रहे हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। अब इसका पढ़ें हम 8वां वचन। इन द वेरी सेम वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ड्रीम्स दीज अनगॉडली पीपल pollute their own bodies, reject authority and heap up abuse on celestial being। कि कैसे ये अपने आप को गंदा कर रहे हैं ये लोग और कैसे दूसरों को दूषित कर रहे हैं। मॉरली, नैतिक रीति से गिरे हुए हैं, आध्यात्मिक रीति से गिरे हुए हैं, जीवन के हर पहलू में गिरे हुए लोग हैं ये। और ये क्या कर रहे हैं? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 16 वचन से पढ़ें। दीज पीपल आर ग्रम्बलर्स एट फॉल्ट फाइंडर, दे फॉलो देयर ओन ईवल डिजायर्स। ये अपनी गंदी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यहूदा की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन, और लिखा है बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स एंड फ्लैटर अदर्स फॉर देयर ओन एडवांटेज। दूसरों की चापलूसी करते हैं जब इनका फायदा हो रहा हो तो बहुत मस्का मारते हैं दूसरों को, लेकिन सच्चे लोग नहीं हैं। और आगे क्या लिखा? बट डियर फ्रेंड्स रिमेंबर व्हाट द अपोस्टल ऑफ लॉर्ड जीसस फोरटोल्ड यू, दे सेड टू यू इन द लास्ट टाइम्स देयर विल बी स्कॉफर्स हु विल फॉलो देयर ओन अनगॉडली डिजायर्स। कि प्रभु के दासों ने हमें पहले चेतावनी दी कि अंत के दिनों में ऐसे झूठे लोग आएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? दीज आर पीपल who divide you, who follow mere natural instinct and do not have the spirit। ये भोग विलास की कामना से काम करते हैं, इनके अंदर परमेश्वर के कलाम की सच्चाई नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ लीजिएगा और 14 और 15 पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 6 और 2 का 14 और 15। अब मैं आपको एक और आखिरी जो झूठी शिक्षा है वो बताना चाहता हूँ। ये आखिरी जो झूठी शिक्षा है इसे बाइबल में, पत्रियों में कहा गया है डोइसिटिज्म। डोइसिटिज्म क्या है? ये ग्रीक फिलॉसफी की एक रिफाइंड फॉर्म है। क्या है ये शिक्षा? बड़ी डिसेप्टिव है। ये शिक्षा ये है कि परमेश्वर जो है वो अनंत है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर मनुष्य की समझ से परे है, परमेश्वर इटर्नल बीइंग है, परमेश्वर एजलेस है। जो अनंत परमेश्वर है, जो ट्रांसेंडेंट है, ब्रह्मांड उसे समा नहीं सकते, ब्रह्मांडों के पार है, इतना विराट है, मनुष्य से जान नहीं सकता। वो मैटर के अंदर कैसे आ सकता है? अर्थात भौतिक दुनिया में आ ही नहीं सकता वो परमेश्वर। तो वो किस चीज को डिनाई करते हैं? वो ये डिनाई करते हैं कि यीशु मसीह कभी भी देह में नहीं आया। जो जिसका प्रचार चेलों ने किया वो स्पिरिट थी, कॉस्मिक स्पिरिट थी, एक अनंत आत्मा थी जो जगत में आई। और वो उसे कैसे प्रूव करते हैं इस हेरेसी को? कि देखिए यीशु मसीह दीवारों के बीच में से निकल जाता था, समुद्रों के ऊपर चलता था। तो यीशु मसीह वो स्थूल शरीर में आने वाला नहीं है, वो देह में आ ही नहीं सकता। परमेश्वर डिवाइन है, वो इस मैटर के अंदर कैसे कैद हो सकता है? ये डोइसिटिज्म की टीचिंग है, जिसके विषय में यूहन्ना
वार्निंग। यूहन्ना असल में डोइसिटिज्म के खिलाफ ही पत्रियां लिखता है। पढ़िए आप पहला यूहन्ना, जल्दी से निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए। पहला यूहन्ना उसका आप निकालिए दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 18 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 वचन। डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट आवर एंड यू हैव हर्ड दैट द एंटी क्राइस्ट इज कमिंग, इवन नाउ सो मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम। कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी की रूह ऑलरेडी काम कर रही है, पहले काम कर रही है। दिस इज हाउ वी नो इट इज द लास्ट आवर। इसीलिए हमें पता लगता है, क्योंकि ये भरमाने वाली मसीह विरोधी रूह काम कर रही है, हम जान रहे हैं कि आखिरी घड़ी आ गई है। They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belonged to us. इनके विषय में बात कर रहा है एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट के बारे में। अब इसका पढ़ें आप 22 वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 22 वचन पढ़ें, क्या लिखता है। Who is the liar? कौन है झूठा? It is whoever denies that Jesus Christ, such a person, जो यीशु मसीह का इनकार करता है वो कौन है? एंटी क्राइस्ट है। डिनाइंग द फादर एंड द सन, नो वन हु डिनाइज द सन हैज द फादर, हु एवर एक्नॉलेजेस द सन हैज द फादर ऑल्सो। कि जो पुत्र का इनकार करता है उसके अंदर पिता भी नहीं है। हालेलुया। और आपको मालूम यूहन्ना अपनी पत्री, पहली पत्री शुरू कैसे करता है? डोइसिटिज्म का विरोध। पहली पत्री में क्या लिखता है, सुने गौर से। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लिखता है, दैट विच वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अनादि था। क्योंकि ये शिक्षा कहती डोइसिटिज्म की, जो अनादि परमेश्वर है वो कभी देह में आ नहीं सकता, जो इतना विराट है मैटर में नहीं समा सकता वो। तो उनकी ये गलत शिक्षा थी। तो कहते हैं वो जो बिगिनिंग में था, शुरू में था, अनादि में था, विच वी हर्ड, जिसके विषय में हमने सुना, विच वी हैव सीन विद अवर आइज, अपनी आंखों से उसे हमने देखा, विच वी हैव लुक्ड एट एंड अवर हैंड्स हैव टच्ड, उसको हमने देखा। क्यों प्रेरित यूहन्ना कह रहा, वो जीवन जो पिता में छुपा था, जिसे तुम कहते हो अनंत है, इटर्नल है, वो ही जीवन क्या हुआ जिसके विषय में हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसको अपने हाथों से हमने छुआ। साक्षी दे रहे हैं उसकी। दिस वी प्रोक्लेम कंसर्निंग द वर्ड ऑफ लाइफ, वो जीवन का वचन है। कौन? मसीह यीशु। वो क्या हुआ? द लाइफ अपीयर, देहधार के पृथ्वी पे आया। वी हैव सीन इट एंड टेस्टिफाई एंड वी प्रोक्लेम टू यू द इटर्नल लाइफ विच वॉज विद द फादर एंड हैज अपीयर टू अस। वी प्रोक्लेम टू यू दैट वी हैव सीन एंड हर्ड दैट वी हैव ऑल्सो, that you may also have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with his Son the Lord Jesus Christ. प्रेरित कहता है कि वो जीवन इस धरा पे उतरा, उसने मानव का शरीर लिया, हमने अपनी आंख से देखा, हमने अपने हाथों से छुआ, अपने कानों से सुना, उसी अनंत जीवन के विषय में, जो जीवन का वचन है, जीवन का मन्ना है, जिसका नाम यीशु मसीह जो देह धार के आया, उसके विषय में हम तुम्हें गवाही देते हैं। डोइसिटिज्म की तालीम बहुत टैलेंट थी। हालेलुया। कहाँ पे? पहली कलीसिया के अंदर। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 8 से 11 वचन को पढ़ लीजिएगा। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 8 से 11 वचन डोइसिटिज्म का शिक्षा का कि मसीह एक आत्मा है, वो शरीर में कभी नहीं आया, एक कॉस्मिक स्पिरिट है, ब्रह्मांड की एक आत्मा है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस है वो। आपको मालूम जो झूठा धर्म आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, जिसे लोग नई अवेकनिंग कहते हैं, न्यू अवेकनिंग जिसे लोग कहते हैं, कॉन्शियसनेस का जागना, नया विवेक आ रहा है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन आ रहा है, दुनिया के सारे धर्म इकट्ठा हो रहे हैं उसके अंदर। रोमन कैथोलिक के पोप साहब उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, ग्लोबलिस्ट उसके अंदर, डीप स्टेट उसके अंदर, इल्यूमिनाटी और उसके अंदर फ्री मेसनरी और उसके अंदर संसार को चलाने वाली बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स हैं जो संसार को लेकर आ रही हैं। वो आ रहा है, आप उस समय को देखिए, वचनों को समझिए। ये फॉल्स टीचिंग रैम्पेंट्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। हालेलुया। और प्लेनो न्यूमा भरमाने वाली रूहें, और डिडेस्कलिया
डेमोनिया, दो बातें प्रेरित पौलुस लिखता है। प्लेनो न्यूमा, भरमाने वाली रूहें, और डिडेस्क्लो, डिडेस्क्लो आगे क्या कहता है प्रेरित पौलुस? डायमोनिया। डिडेस्क्लो होता है शिक्षा, और डायमोनिया डीमंस। डीमंस कौन है? जो नफलीम मरे 6 अध्याय में, उनकी जो सोल निकली वो डीमन बनी है। ये वही देवता हैं जो वापस लौट रहे हैं, मिस्र के, यूनान के, कसदियों के, हित्तियों के, कनानियों के, रोमियों के, यूनानियों के, अकेडियन के, गिरगिशाइटों के, यबूसियों के। बाइबल के अंदर उनके नाम हैं सबके, ओल्ड टेस्टामेंट में। वो वापस लौट रहे हैं भाई और बहनों। संसार में इतना तगड़ा भ्रम लेके आ रहा है शैतान, और कलीसिया को शिक्षित नहीं किया गया। कलीसिया वहीं है, बड़े काम करने आ रहा प्रभु, कराओ बड़े बड़े काम, वहीं रखा हुआ है। आइए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सत्य को, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 11 वचन पढ़िएगा। बीरिया की कलीसिया बनी है। बीरिया की कलीसिया की प्रशंसा की है कि वो वचन को खोजते थे। हालेलुया। जो मैं सिखा रहा हूँ इसे खोजिए। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी हूँ। मैं परमेश्वर के कलाम का विद्यार्थी हूँ। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको खोजें। किसी भी प्रीचर को ऐसे ना ले लें फेस वैल्यू पे कि बहुत बड़े पापा जी डैडी जी हैं। खोजो कलाम को, ढूंढो। अंत के दिन है भाई और बहनों, जागृत हो और दूसरों को जागृत। मसीह जल्दी आ रहा है। ये कोरोना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पृथ्वी पर उतरी है। इसके बाद अब वैक्सीनेशन आएगी, ज़बरदस्ती की जाने वाली वैक्सीनेशन। और इसके बाद नोहा हाइड लॉज आएंगे। नोहा हाइड लॉज, डिक्टेटरशिप आएगी। फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे पूरी दुनिया का एक बन जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। सब चीज़ें जो वचन में लिखी हैं वो हमारी आंखों के आगे घट रही हैं। आइए आंखें बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु खोलें हमारे ऊपर प्रभु ये भ्रमाने वाली बदरूहों की तालीम। और प्रभु जो कानों की खुजली के कारण, टिकलिंग ईयर के कारण, अच्छी अच्छी बातें सुनने वाले जो ऐसी भीड़ें हैं खुदावन, उनको अपने चेले बनाइए खुदावन। अपने चेले बनाइए खुदावन। हम आपके पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा की आग की कामना करते हैं। आपकी आशीष हो खुदावन, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। इवनिंग को 6:30 बजे छोटे स्पेल के लिए हम इकट्ठा होंगे, प्रार्थना करेंगे और छोटी सी टीचिंग करेंगे, मे बी 10-15 मिनट्स की। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।